Good morning, students. I hope you all are safe at your homes, practicing your maths regularly. I have made a new video for you on LCM. I hope you all will like the video. Kindly do watch the video carefully, like it, share it, subscribe it also, and understand all the concepts which are there in the video. So without wasting your time, let's get started. Hello students, I'm back with a new video and I'm going to explain you about least common multiple, that is LCM. Okay, this is also a very important topic of our class 6, and if you are from higher classes also, then also you can see this video and have the knowledge. Least common multiple. Let me just tell you the meaning of these least common multiples. Where L stand for least or lowest, you can say least or lowest. C stands for something common, which you can share with or in common whatever the thing is. Then M is the multiple. Obviously whenever you multiply something, whatever you get is the multiple. Fine. So LCM of any two numbers, LCM of two numbers is the smallest natural number, which is the multiple of both those numbers, right? Just like I have A and B. So LCM of A and B is the smallest natural number, which is the multiple of both A and B. Is it clear? Now let us have a look on a very good method, prime factorization method. इस मेथड के बारे में आपने HCF वाले वीडियो में भी देखा है, but I'm going to explain you about how to find out LCM with the help of this prime factorization method. Let's find out. Let us take some value. I'm taking 12 and 42 with me. अब you all know, to find out prime factorization, what we have to do. First of all, we have to find out the factors of 12. It is an even number, so we will divide it with even prime. 2 6 are 12. Again it is an even number. 2 3s are 6. 3 is in itself a prime number, so 3 1s are 3. These are all the prime factors of 12. Then we have 42. Let's take 42 and find out the prime factors of 42. It is also an even number. Let's divide it with 2. You will get 2 2s are 4, 2 1s are 2. 21, odd number. We will divide it with 3. 3 7s are 21. 7 in itself a prime. Then again you have to write 7 1s are 7. Now the next step is you have to write down these factors. 2 into 2 into 3 and the factors of 42. 2 into 3 into 7. Now how to find out the LCM? How to find out this LCM? Yes, LCM फाइंड आउट करने के लिए बहुत इजी है, ध्यान से सुनना, बहुत इजीली समझना, समझ भी आ जाएगा. आपको सबसे पहले देखना है कि कॉमन क्या है. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दैट 2 इज कॉमन इन बोथ द नंबर्स. यहाँ पे 2 दो बार है, इधर एक बार ही है. LCM में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वाला 2 लेना है, तो यू हैव टू टेक 2 टाइम्स. ठीक. देन यू हैव 3 हेयर एंड 3 हेयर. इन बोथ द नंबर्स इट इज 1 टाइम, तो जस्ट राइट डाउन 3. And also there is also one more number which is 7. LCM में आपको वो नंबर भी लेना है, so you have to take 7 as well. Now what is the answer? 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 7s are 84. So 84 is the LCM of our 12 and 42. 84 is the LCM of 12 and 42. Is it clear? Let us take one more example so that आपको और अच्छे से clear हो जाए. I am taking 36, 48 and 60. I am taking these three values. Let us find out the prime factorization method से ही इनका भी LCM. चलो फाइंड करते हैं. 36 के फैक्टर्स निकालो. इवन नंबर है, 2 से जाएगा. 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. अगर आपको ये फैक्टर्स निकालने नहीं आते तो आप HCF वाला वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. Then 48 we have again a even number. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. These are all the factors of 48. Now let's come to 60. 60 again a even number. 2 3s are 6, 0, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15 and 5 in itself a prime, so 5 1s are 5. These are the factors of all three numbers. Let's write them together. 36 is 2 into 2 into 3 into 3. 48, the factors of 48 are 2 into 2 into
2 into 2. 2 is 4 times and 3 is 1 time. 60 is equals to 2 into 2 into 3 into 5. Now let's find out what will be the LCM of these three numbers, right? What will be the LCM? Now let's see LCM. आपको सबसे पहले देखना है that which number is common there. 2 is common. 2 is 2 times here, 2 is 4 times here and 2 is 2 times here. तो मैंने आपको बोला कि आपको जो ज़्यादा बार आ रहा है वो लेना है. तो you have to take 2 4 times. Then you have to see 3 2 times here, 1 and 1. Common है लेकिन ज़्यादा times you have to take. So you will write 3 into 3. Then whatever number is left, that also you have to take 5. So write that also 5. Now let's see what will be our solution. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48, 48 3s आप सॉल्व कर लो. अगर आपको नहीं पता आप रफ में यहाँ सॉल्व कर सकते हो. 8 3s are 24, 4 3s are 12, 12 go to 14 into 5 करना है. 5 4s are 20, 5 4s are 22, 5 are 5, 6 7. So yes, we will get our answer as 720. So what is the answer? Answer of this LCM is 720. Is it clear? Now students, you must see that on the board digits are same. Digits are same, 36, 48 and 60. But I have changed the method, common division method. This is the very easier method to find out the LCM of a number. ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इजी होता है. आपको याद होगा मैंने आपको HCF के वीडियो में बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट HCF. बट हेयर आई एम टेलिंग this common division method is best method to find out LCM. Okay, let's find it out how we will solve this. In this now we have to write the digits together. We will find out the factors together of all the three numbers. Just because all the three digits are your even numbers, let's divide it with 2. And carefully listen whatever things I am telling you. It is 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 0. Again even number is there, divided with 2. अगर इन तीनों में से कोई एक भी इवन है तो आपको पहले इवन से ही डिवाइड करना है. 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 15. Just like you can see 9, 12 और 15 में सिर्फ 12 इवन है. अगर एक भी इवन है तो भी आपको उसे इवन प्राइम नंबर से सॉल्व करना है. ओके, 9 नहीं जा सकता 2 से, 9 विल नॉट गेट डिवाइडेड, तो 9 को एज इट इज लिखोगे. 2 6 are 12, 15 को एज इट इज लिखेंगे. Then again with 2 we will go 9, 3, 2 3s are 6, 15. अब all the odd numbers are there, even number solve हो चुका है तो आप 3 से इसको डिवाइड करोगे. 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 5s are 15. Again 3 से because 3 is there, 5. Then 5 1s are 5, 1 1. Now let's find out what will be the LCM. We already know the previous value हमारी 720 थी. Let's find out हमारा सेम आता है यानी 2 into 2 into 2 into 2, 4 times 2 is there, 3 times 2 times 3 is there and 5. Now 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48, 48 3s are हमने सॉल्व किया था. Let's do it together. 8 3s are 24, 144 और 5s are 720. So yes, we will got our answer as 720. This is the answer which you are getting in the previous question as well. So you can find out कि इसमें आपको कुछ कॉमन ही नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है. जस्ट फाइंड आउट द फैक्टर्स टुगेदर और उन सबको मल्टीप्लाई कर दो. एज सिंपल एज दैट. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिटन ऑन द बोर्ड इज फाइंड 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. आपको 2 नंबर्स दिए जाएंगे, आपको उनका 2 कॉमन मल्टीपल्स निकालना है. देखो मल्टीपल्स आपको समझना होगा. व्हाट आर मल्टीपल्स? मल्टीपल्स एक्चुअली आर इन सिंपल फॉर्म टेबल्स. मल्टीपल्स को आप टेबल्स बोल सकते हो. मल्टीपल्स इज इक्वल्स टू टेबल्स. छोटे बच्चों को हम यही बताते हैं दैट मल्टीपल्स इज इक्वल्स टू टेबल्स. ठीक, अब वी विल यूज दीज टेबल्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कॉमन मल्टीपल्स. लेट्स हैव अ लुक. 2 digits I am taking 3 and 4. You have to find out 2 common multiples of 3 and 4. How will you find out? First of all, write down the multiples of 3. अब just I told you that what are multiples? Multiples are just tables. So you have to write down the table of 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, then 3 9s are 27, 3 10s are 30 and it goes on. आगे भी जाता है. Similarly, you have to write down multiples of 4 here. So what are multiples of 4?
4 का टेबल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 36, 40 and so on. I have just wrote down all the table of both the numbers. ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है, आपको देखना है कि कॉमन क्या है इनमें, कुछ सिमिलैरिटी दिख रही होगी आपको, दिख रहा है ये 12 यहाँ पे भी है और ये 12 यहाँ भी है, 24 is here also and 24 is here also. So yes, we got the number, we got the two common multiples. So you will write down two common multiples of 3 and 4 are 12 and 24. As simple as that. Is it clear? So in this manner you can find out two common multiples of any 2 or 3 given numbers. Okay. Now next topic is relation between two numbers and their HCF and LCM. You know what? There is a relationship between HCF and LCM and those two numbers. What is that relation? That relation is HCF multiplied by LCM is equals to product of those two numbers. You know what? You know that कि HCF और LCM दो numbers का होता है, तो HCF into LCM is equals to product of those two numbers is the relationship between LCM and HCF and those two numbers. अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, लेट्स फाइंड आउट कि कैसे उसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव, इट इज़ गिवन टू अस दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, product of two numbers is 2880. ठीक है, this is given to you and their HCF is also given to us 12. Find their LCM. You have to find their LCM. आपको उनका LCM फाइंड करना है. अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट आपको गिवन है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या गिवन है 2880, आपको HCF भी गिवन है क्या 12, आपको फाइंड आउट करना है LCM. तो क्या आपको लग रहा है कि इस बोर्ड पे आपको एक फॉर्मूला गिवन है ऑलरेडी, जिससे आप दो चीज़ अगर आपको गिवन है आप थर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हो? यस, यू हैव दिस फॉर्मूला. सो जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट. व्हाट इज HCF here? 12 into LCM you have to find out. Product is also given which is 2880. Now find out this LCM. This will be 2880 divided by 12, है ना, 12 से डिवाइडेड होगा. क्यों? क्योंकि अगर इधर मल्टीप्लिकेशन में है आपका, इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जाके वो डिवाइड हो जाता है. कैंसिल आउट करो, 12 2 ज़ा 24 होता है, 4 आएगा, 12 4 ज़ा 48, 0. यस, यू विल गेट योर LCM. योर LCM इज 240. समझ में आया? इजी था. यानी विदाउट जस्ट नोइंग द नंबर्स, आपने HCF ऑलरेडी गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, आपने LCM फाइंड आउट कर लिया. यानी आपको नंबर्स नहीं पता लेकिन आपने उसका LCM फाइंड आउट कर लिया विदाउट नोइंग द नंबर्स. तो दिस इज द वेरी ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ओके, नाउ वन मोर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर ऑन द बोर्ड. द क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 105 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 6 इन ईच केस. ऐसे क्वेश्चंस आप HCF में भी देखते हो जहां आपको फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बोला जाता है. यहाँ आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है क्योंकि LCM ही लीस्ट नंबर्स होते हैं. तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, देखो HCF और LCM में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्वेश्चंस को करने में. आपको यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करना है LCM ऑफ 35, 56 एंड 105. ठीक है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू सॉल्व द LCM हमें फाइंड आउट करना आता है. हम लोग क्या करते हैं LCM फाइंड आउट करने के लिए? Together we will write all the numbers and then we find out the factors. ठीक, एक इवन नंबर है तो ऑब्वियसली 2 से आप इसको डिवाइड करोगे. ठीक, सो 35 will remain as it is, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 105 will be there. Then again 2 से आप लेके जाओगे, इसको डिवाइड करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 105. Again it will go with 2, 35, 2 7 ज़ा 14, 105. तो ऑल द इवन नंबर्स आर ओवर. अब इसके बाद आप ऑड नंबर पे आते हो विच इज़ 3. ठीक है, 35 विल रिमेन एज इट इज़ क्योंकि 35 3 की टेबल से नहीं जाता है. 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15.
अब कोई भी नंबर 3 से भी नहीं जाएगा. लेट्स हैव अ लुक ऑन 5 क्योंकि 35 विल गो ऑन विद 5. So 5 7s are 35, only 7 remains. So we will take the next prime, which is 7 only, and we will able to find out our LCM, which will be 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 7. बहुत सिंपल हो जाता है इस तरीके से LCM फाइंड आउट करना. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. 24 into 5, 5 4s are 20, 5 2s are 10, 120 into 7, 0, 7 2s are 14, 7 1s are 7 or 8. So 840 will be your LCM here. ठीक है, तो LCM फाइंड आउट कर लिया. अब आपको क्वेश्चन ने बोला था कि आप स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करो जो इन सब से डिवाइड करके रिमाइंडर छोड़े 6. तो आपको जो रिक्वायर्ड नंबर निकालना है ना, बहुत सिंपल होता है LCM में ऐसे क्वेश्चंस करना. रिक्वायर्ड स्मॉलर नंबर विच यू नीड टू फाइंड आउट विल बी योर LCM प्लस द रिमाइंडर. LCM plus remainder, and this will come out to be 846. This is the smallest number which leaves remainder 6 when divided by 35, 56 and 105. समझ आया? कुछ भी नहीं करना. क्या करना है, हमने इसमें सिर्फ LCM फाइंड आउट किया और रिमाइंडर को LCM में प्लस कर दिया. That's it. Now next question on the screen. The question is find the smallest 4-digit number that is exactly divisible by 36, 40 and 45. तो अब आपको इतनी देर से आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको एक आइडिया हो गया है कि सबसे पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है LCM ऑफ द गिवन डिजिट्स गिवन टू यू. तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है LCM ऑफ 36, 40 एंड 45. लेट्स फाइंड आउट बिकॉज वी नो द मेथड, वेरी इजी मेथड टू फाइंड इट आउट. लेट्स हैव अ लुक. दिस विल बी, देखो आई हैव ऑलरेडी डन द क्वेश्चन. ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया है आपका LCM, बट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. ठीक है, विदाउट जस्ट सीइंग द वैल्यूज, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. यू डोंट हैव टू सी दिस. ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट द LCM ऑन योर ओन एंड देन जस्ट चेक योर आंसर. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज योर LCM हियर. योर LCM विल बी 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 and the answer will be 360. So therefore your LCM is 360. That we got the value. Now question को ध्यान से देखा जाए तो it's already given. आपको smallest 4-digit number निकालना है. एक ऐसा smallest 4-digit number जो exactly divide करे 36, 40 और 45. अब to find out that 4-digit number, what needs to be done? You should know that what is smallest 4-digit number. Smallest 4-digit number is equals to 1000, right? Now you have to see that whether a 4-digit number which we are taking is divisible by this LCM or not. So in order to find out a smallest 4-digit number which is exactly divisible, we have to divide this 4-digit number, smallest 4-digit number, by 360. We have to divide 1000 by 360. Let's divide the numbers. 360 से आप इसको divide करो. Let me just take 2. So 720 will come and 280 will be the remainder. That means we are getting some remainder here. अब अगर ये नंबर exactly divisible हो जाता तो हम बोलते 1000 is the number, एक smallest 4-digit number है जो divide कर रहा है, लेकिन आपको remainder बच रहा है. ये remainder कब नहीं बचता? जब आप 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आपको एक वैल्यू मिलेगी. अगर इसमें आप देखो 280 में कितना प्लस करूँ मैं कि 360 आ जाए. 360 होता तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता. 280 में मैं 80 प्लस करूँ 360 आ जाएगा. ठीक है, अब आपको ये फाइंड आउट करना है वो नंबर कौन सा है, रिक्वायर्ड नंबर. व्हाट इज दैट रिक्वायर्ड नंबर, व्हाट इज दैट रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द थिंग. दैट विल बी 360 में से 280 को सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आंसर आता है उसको 1000 से प्लस करो. क्या करना है आपको, 1000 प्लस 360 माइनस 280, यानी आपके डिवाइजर से रिमाइंडर में से सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता ना. आपको रिमाइंडर चाहिए था 0 लेकिन मिला नहीं 0, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इस नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी वैल्यू आती है उसको डिविडेंड में प्लस करो. तो दिस विल बी 1000 प्लस 80. सो देयरफॉर 1080 will be your answer. This is that required smallest 4-digit number which is exactly divisible by 36, 40 and 45.
समझ में आया? फिर से समझा देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एलसीएम फाइंड आउट करना है विच इज़ 360। फिर देखो आपको निकालना क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना था, निकाल लिया। इस स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करो विद द एलसीएम, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर अगर बचता है तो आपको उसे डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करके इस डिवाइज़र में, इस डिविडेंड में प्लस करना है। डिवाइज़र से सब्ट्रैक्ट करके डिविडेंड में प्लस करना है, तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है। देयर इज़ अ सेकेंड मेथड टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसमें आपको डिवाइड नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्या करना है, अगर आपको एलसीएम मिल गया है 360 के मल्टीपल्स लिखो। 360 वन ज़ा 360, 360 टू ज़ा 720, 363 ज़ा होता है 1080, ठीक है, एंड सो ऑन। आपको निकालना क्या था, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ गया आपका 1080। अगर आपको पूछा जाता ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालो जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करे 36, 40 और 45 को, तो आप लिखते ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विल बी 720, ठीक है। ये और भी ज़्यादा इजी है, आपको सिर्फ एलसीएम के मल्टीपल्स निकालने हैं और उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा नंबर है विच इज़ रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? स्लाइड चेंज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। अब आपको मैं दोनों तरीके से समझाऊंगी इसको, ठीक है, डिवाइड करके भी और विदाउट डिवाइड करके भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ द नंबर्स। 6, 8 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करो द मेथड यू नो, ठीक है। दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू कैसे करना है, यू हैव टू डू इट, ओके। जस्ट पॉज द वीडियो एंड फाइंड आउट हाउ आई हैव डन इट। सो आवर एलसीएम विच कम्स आउट इज 24। आपका एलसीएम आया 24। अब आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है। सो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 999, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर्स में हम 9 का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ। ऑब्वियसली आपका एलसीएम आया है 24, तो आपको डिवाइड करना है 999 बाय दिस एलसीएम 24, ठीक है। यू हैव टू डिवाइड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विद 24। लेट्स डिवाइड द नंबर्स। डिवाइड करके चेक करते हैं व्हाट विल बी आवर आंसर। 24 से डिवाइड करो 999 को। 24 का ऑब्वियसली हमें फॉर्मूला नहीं पता, 24 का टेबल नहीं पता, तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप साइड में रफ में सॉल्व कर सकते हो। सो आई एम जस्ट सॉल्विंग। 24 4 ज़ा 96, 3 विल बी द रिमाइंडर। 24 1 ज़ा 24, देन आई एम गोइंग टू गेट 15 इज़ माई रिमाइंडर। यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ है, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है। तो जो भी आपका रिमाइंडर आता है ना, आपको रिक्वायर्ड नंबर जो निकालना है, आपको निकालना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर माइनस द रिमाइंडर। जो भी आपको रिमाइंडर मिला है उससे सब्ट्रैक्ट कर दो एंड यू विल गेट द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। ईजी था, कितना ईजी था। डिवाइड किया, रिमाइंडर जो बचा उसे माइनस कर दो अपने नंबर्स में से जिसमें से आपने डिवाइड किया है, जिसको डिवाइड किया है, ठीक है। अब इसके बाद अल्टरनेट मेथड, दूसरा मेथड थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाता है, क्योंकि दूसरे मेथड में आपको 24 का टेबल लिखना है, ठीक है। पूरा 24 का टेबल लिखो एंड यू विल गेट 984 देयर ऑल्सो। आपको 984 एग्जैक्टली मिलेगा। अगर आप 984 को डिवाइड करना चाहो 24 से आप कर सकते हो। 24 4 ज़ा 96 होता है, यू विल गेट 24 1 ज़ा 24, ठीक है। सो यू विल गेट टू नो कि 24 41 ज़ा 984 होता है। तो ये भी आपका आंसर है, आपका ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट हो जाएगा विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस नंबर। लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर में डिवाइड वाला पोर्शन ज़्यादा इजी था, तो आप डिवाइड वाला पोर्शन ज़्यादा कीजिएगा। इज इट क्लियर? Thank you everyone for watching the video. I have given you so many examples to do the questions. I hope you all like the video. Kindly share this video, subscribe the channel and like it also, so that you will get more of the videos of this kind. ठीक है, प्लीज़ देखो मैथ्स में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू डू द क्वेश्चंस। तो आपको जो भी समझ में आया प्लीज़ डू द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस वंस मोर and you will able to solve them properly. Thank you so much for watching it. Thank you so much. Take care.